Hello everybody, welcome to the bypass route. In the previous class, we were doing the Nelson Mandela Long Walk to Freedom Part 1, and today's class we will be doing the Part 2. Before that, let's have a look what we had done in the last class. Well, you know very well that the system of apartheid was completely throttling the people of South Africa. They did not have their rights altogether for 30 years. Nelson Mandela and his people, they suffered a lot in the Robben Island. And after a lot of struggle, finally South Africa gains its independence. And then there is this ceremony, the inauguration. And there, what happens? Nelson Mandela was sworn in as the first black president of South Africa. Well, now as the inauguration was taking place, let me tell you what happens next in this part. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Awe का मतलब होता है a feeling of fear mixed with respect. मतलब it's like a kind of wonder, wow type. Spectacular array का मतलब होता है beautiful, impressive display, बहुत बढ़िया. Okay? So क्या होता है कुछ देर बाद सब लोग जैसे ऊपर देखते हैं तो इनॉग्रेशन के पार्ट के हिसाब से क्या होता है, साउथ अफ्रीकन जेट्स वगैरह रहता है, हेलीकॉप्टर्स रहता है, ये सारे उड़ते हैं आसमान पर, बहुत सुंदर दिखते हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ते हुए. It was not only a display of pinpoint precision. Precision मतलब होता है accuracy, perfect accuracy. तो ये जो उड़ रहे थे ऊपर, it was not only a display of pinpoint precision and military force, also a demonstration of military's loyalty to the democracy. तो यहाँ पे ये दिख रहा था कि बस accuracy के साथ वो लोग उड़ान नहीं भर रहे थे, ये also दिखा रहा था कि उनका जो military का जो loyalty होता है democracy की तरफ, वही चीज भी दिखा रहा था. To a new government that had been freely and fairly elected. ठीक है, अभी वो पुराना गवर्नमेंट नहीं रहा. This is a new government, freely and fairly elected government, and उसी के तरफ जो लॉयल्टी है उसी के साथ ये आसमान में उड़ान भर रहे थे. Only moments before the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest bedecked का मतलब होता है क्या, decorated with, okay, with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो क्या हुआ था, कुछ वक्त पहले ही ये जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के पर्सनल्स थे, इनको अपना नेल्सन मंडेला को ये लोग सैल्यूट किए थे. एंड और क्या हुआ था, I was not unmindful. देखो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron मतलब V shape of Impala jets मतलब African jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो ये पुलिस ऑफिसर्स जो थे, इससे पहले इनको सैल्यूट नहीं, अरेस्ट करते थे नेल्सन मंडेला को, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में एक नया सूरज उग चुका था, तो अभी अरेस्ट नहीं, सैल्यूट कर रहे थे. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि क्या होता है, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और अफ्रीकन जो हेलीकॉप्टर्स, जेट्स वगैरह ऊपर उड़ते हैं. तो जैसे ही ऊपर उड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इट शोज दैट अफ्रीकन जो मिलिट्री है, इट वाज नॉट जस्ट शोइंग इट्स डिस्प्ले ऑफ द हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल, इट आल्सो शोज पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब कितना परफेक्टली वो लोग उड़ा रहे हैं. उसके साथ ये भी बता रहा है कि वो जो डिफेंस है, जो मिलिट्री सेक्शन है, अपना लॉयल्टी दिखा रहा है फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को. और एक चीज यहाँ पे नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स अभी बैजेस वगैरह रिबन्स वगैरह लगा के वहां पे बैठे हुए थे, वही लोग कुछ देर पहले उनको सैल्यूट किए थे. और एक बात ये भूले नहीं है, कौन सी बात, कि कुछ साल पहले यही थे वो लोग जो उनको सैल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट किया करते थे. तो कितना बदल चुका था साउथ अफ्रीका. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Ngozi Sikelel' Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem,
they once despised. Despised का मतलब होता है having a very low opinion of. Alright, so although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो उसी दिन दो नेशनल एंथम्स प्ले किए गए थे. एक था गोसी सिकलेले अफ्रीका एंड दूसरा था डाई स्टेम. तो यहाँ पे ब्लैक्स एंड व्हाइट्स ये क्या सिंबलाइज करता है? दो नेशनल एंथम सिंबलाइज करता है इक्वल राइट्स फॉर बोथ व्हाइट्स एंड ब्लैक्स. ऑलराइट, और आप लोग अब जानने के लिए चाहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है. गोसी सिकलेले अफ्रीका, इसका मतलब होता है गॉड ब्लेस अफ्रीका. एंड दूसरा जो एंथम था डाई स्टेम, दैट वाज द फॉर्मर एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका, और इसका मतलब है द वॉइस ऑफ अफ्रीका. ऑलराइट, सो ये दोनों नेशनल एंथम्स को गाया जाता है. यस, गा तो रहे थे, लेकिन ये दोनों व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, इन लोगों को किसी को भी पता नहीं था इसका मीनिंग क्या होता है. लेकिन नेल्सन मंडेला का पूरा यकीन था कि बहुत जल्द ये लोग इसका मीनिंग भी बाय हार्ट कर लेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed का मतलब होता है भावनाओं में बह जाना, completely carried away. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. इनॉग्रेशन के दिन वो थोड़ा पीछे चल के सोचते हैं 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के बारे में. डिकेड क्या होता है? इट्स अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स. तो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड क्या होगा? 1900 से 1910. तो ये फिर वो ये करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं किस हिसाब से? एंग्लो बोअर वॉर, जो कि हुआ था 1890 से शुरू होकर 1892 तक चला था, और अपना डेट ऑफ बर्थ जो कि 1918. इसी बीच जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, इसके बारे में वो जिक्र करते हैं, बात करते हैं. क्या हुआ था उसी बीच? अफ्रीकन लोग जो थे, ये लोग अपनों, मतलब जो ऐसे कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था. हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अफ्रीकन लोग ही, गोरे लोग काले लोगों के ऊपर एक रेशियल डोमिनेशन क्रिएट करते हैं. मतलब गोरे लोग मोर पावरफुल हैं और काले लोग थोड़ा स्लेव जैसा रहेंगे. समझ रहे हो? तो यहाँ पे बात करते हैं एंग्लो बोअर वॉर के बारे में, जो जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को. एंग्लो बोअर क्या होता है? एंग्लो स्टैंड्स फॉर द इंग्लिश पीपल एंड बोअर स्टैंड्स फॉर द फार्मर. ओके, लेट मी टेल यू, बोअर स्टैंड्स फॉर द अफ्रीकन पीपल. तो यहाँ पे जो बोअर वॉर्स हुआ था, दो फेज में हुआ था एक्चुअली, बोअर वॉर 1 एंड बोअर वॉर 2. तो जो पहला जो हुआ था, दैट हैड टेकन प्लेस वे बैक इन 1880. ठीक है, जबकि अंग्रेज लोग आते हैं तभी होता है पहला बोअर वॉर 1. तो वहां पे जो होता है, कौन जीतता है, ये मतलब बराबर 50-50 में एंड हो जाता है. लेकिन जो बोअर लोगों का फॉरेन पॉलिसी होता है, उसी हिसाब से वो लोग पीछे रह जाते हैं, उनका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर से कंट्रोल उठ जाता है. तो एक यहाँ पे एक स्टेप कामयाबी मिलता है अंग्रेजों को. उसके बाद होता है 9 साल लगभग के बाद 1819 में बोअर वॉर 2. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब फाइट होता है, एंड लेट मी टेल यू व्हाई दिस वॉर हैपेंड. एक्चुअली इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द मिनरल्स दैट वर फाउंड इन साउथ अफ्रीका. जैसे कि आप लोगों को पता है, डायमंड्स वगैरह, गोल्ड वगैरह, ये सब बहुत मिलते थे, और इसी सिलसिले में ये लोग, अंग्रेज लोग, उसको पाने के लिए, पोजेस करने के लिए ये वॉर क्या करते थे. और सेकेंड वॉर में क्या होता है, अंग्रेज लोग जीत जाते हैं. ठीक है, ये तो जीत गए जो भी हुआ, लेकिन ये जो अपना टाइम था 1901 से लेके या फिर 2 से लेके 1918, इसी बीच क्या होता है, रेशियल डोमिनेशन होता है. अपने ही लोग अपनों को टॉर्चर करते हैं. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin.
रेसिज्म का जो स्ट्रक्चर अफ्रीकन लोग बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज रेसिज्म, ये दुनिया में एक सबसे बड़ा इनह्यूमन, एक हार्शेस्ट चीज बन के रह गया। और इसी चीज जो कि स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में, 1900 से स्टार्ट होकर जो शुरू हुआ था, ओके, दैट ऑलमोस्ट टुक 100 years and ended in the last decade of the 20th century, जहां पे नेल्सन मंडेला खुद का 8th डिकेड चल रहा था, मतलब उनका 80s चल रहा था, his age was 76 at that time। सो ये जो चीज था इनॉग्रेशन के दिन वो याद कर रहे हैं कि आज के दिन ये जो मतलब बना था डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे जो चीज बना था, आज वो ओवरटर्न हो चुका है। आज रिगार्डलेस ऑफ स्किन कलर, आप चाहे गोरे हो काले हो, सबके लिए सबका राइट एक बन चुका था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो पहले हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे और अभी सोच रहे हैं वो thousands of patriots who sacrificed their life, जो लोग अपना जीवन का कुर्बानी दे दिए अफ्रीका में वही एक इक्वल सोसाइटी लाने के लिए, where there will be no racism, there will be no domination, such kind of society, ओके, ये एस्टेब्लिश करने में जिन लोगों का हाथ था उनको आज थैंक यू भी वो नहीं कह पा रहे हैं। और उनका जो सैक्रिफाइस, इट हैज रॉट समथिंग, रॉट मतलब अचीव्ड, क्या अचीव करके लाया है वो चीज वो आज देख नहीं पा रहे हैं, उनको दुख लग रहा है। लेकिन ये जो भी हुआ है आज अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसका श्रेय वो देते हैं वही पैट्रियट्स लोगों को कहते हैं ही इज नॉन अदर देन ही इज द सम ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव गॉन बिफोर हिम। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolas, the Chief Lathalis, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Robert Sabkis of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अफ्रीका में रेसिज्म ऑलरेडी प्रेवेलेंट था और अंग्रेजों ने आके उसी चीज को और भी बदतर बना दिया विद द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड जिस तरह से वुंड किया, जिस तरह से हर्ट किया, that may not last for generations but for many years it will take time for the South Africans to recover from this grave wound। well, ये तो हुआ, लेकिन ये जो चीज हुआ था इसके वजह से कुछ अच्छा भी हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एवरी, न्यूटन का थर्ड लॉ पता होगा आप लोगों को, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी हिसाब से जिस तरह से जिस लेवल का ऑपरेशन हुआ, जिस तरह का ब्रुटलिटी हुआ, उसी हिसाब से उतना ही ग्रेट सच पर्सनालिटी, जिनका नाम मैं अभी कहा आप लोगों को, जिनका पिक्चर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो वैसे ग्रेट पर्सन्स विद ग्रेट करेज, ग्रेट विजडम, ग्रेट जेनरसिटी, दोज वुड बी प्रोड्यूस्ड। एंड नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसा लोग, इट इज नॉट वेरी इजी टू बी बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट अगेन। वेल, और वो ये इस चीज के बारे में जिक्र करते हैं कि सब लोग जानते हैं अफ्रीका इज फिल्ड विथ डायमंड्स एंड गोल्ड एंड मेनी सच प्रीशियस जेम्स, लेकिन इनका जो लोग हैं वो उसी चीजों से भी ज्यादा प्रीशियस है। It is from these comrades, comrades का मतलब होता है companion, friends,
इन द स्ट्रगल, आई मीन किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो जिन पर्सनालिटीज के बारे में अभी वो जिक्र किए. इट इज फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience. मतलब resilience का मतलब क्या होता है? कठिनाइयों से जूझने का ताकत. That defies the imagination, मतलब beyond imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. मंडेला कहते हैं कि ये जो करेज है, ये करेज का सही मतलब इन्होंने सीखे हैं इन्हीं ग्रेट पुरुषों से, महापुरुषों से, जिसके बारे में अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे. तो ये देखे हैं नेल्सन मंडेला, जब उनका जो स्ट्रगल चल रहा था, बहुत सारे लोग अपने जान का कुर्बानी ऐसे हंसते हंसते दे देते हैं, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. और ये जो करेज का मतलब क्या सीखे हैं नेल्सन मंडेला? कहते हैं करेज इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज ट्रायम्फ ओवर इट. ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत. मतलब ये जो डर के ऊपर जीत जाना, इसको बोलते हैं ट्रू करेज, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ फियर. इसका एग्जांपल मैं एक एनालॉजी के द्वारा आपको समझाता हूं. देखो, एक हॉन्टेड हाउस है, ठीक है, और वो हॉन्टेड हाउस में रहता है एक भूत. किसी तांत्रिक आया, भूत को भगा दिया वहां से. मतलब आप घर पे अभी टेंशन फ्री हो, यहां पे भूत नहीं है. तो ये क्या है? दिस इज एब्सेंस ऑफ फियर. आपका डर निकल गया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के ऊपर जीत अपना बना चुके हो. देखो, मैं समझाता हूं. अभी घर से बाहर निकलते हो और वहीं पे एक गिरगिट जंप मारता है, और जैसे ही जंप मारता है आप कांपने लगते हो. तो इसका मतलब क्या है? फियर अभी भी आपके अंदर राज कर रहा है, आप इसके ऊपर जीते नहीं हो. So he rightly says that courage is not just the absence of fear, but the triumph over it. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मंडेला कहते हैं कि दुनिया में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होकर वो लोग हेट्रेड का जो भावना होता है उनके माइंड में, दैट डजंट कम नेचुरली. किसी को हेट करो बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, बिकॉज ही हैज डिफरेंट कलर, ऑल दोस थिंग्स, these are very wrong, he says. You know, if you can teach, अगर कोई बच्चे को कुछ सिखा सकते हो तो teach them love, because that comes more naturally to human heart. जब वो प्रिजन में थे तभी भी उनको, when he and his comrades were pushed to their limits, मतलब जितना पेन आप बेयर कर सकते हो उससे भी ज्यादा पेन अगर दिया जाएगा, then we can say it pushed to somebody's limits. तो ऐसा होने से भी they could see a glimmer of humanity in one of the guards. जो guards लोग थे उनमें से एक गार्ड में वो ह्यूमैनिटी को झलक, ग्लिमर मतलब झलक, देख सकते थे, और उनको लगता था, रीअश्योर करता था उनको कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है. और वो कहते थे कि ह्यूमैनिटी जो होता है that can be hidden but can never be extinguished, मतलब कभी उसको बुझाया नहीं जा सकता. वो छिप के रहता है लेकिन बुझ के नहीं रहता है. Okay guys, so that's the end of today's class, and let me tell you, we have not been able to complete it today also because it's a very long lesson, and therefore I have divided it into 3 parts. So the first part completed, this is the second part, and we'll be finishing this lesson in the third part. And till then, I insist you to keep studying. Happy learning.